spontaneous, the phenomena of spontaneous disintegration of nuclei having excess charge as well as mass. सर एक बार रिपीट कर दो फिनोमेना ऑफ Spontaneous disintegration of nuclei having excess charge as well as mass. With the emission of alpha particle, is called alpha decay. With the emission of alpha particle is called alpha decay. Whenever alpha particle is emitted from the nucleus, its charge decreases by 2e and mass decreases by 4 amu. Charge decreases by 2e and mass decreases by 4 amu. रिपीट कर दो इट्स कॉल्ड अल्फा डिके व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल is emitted, charge decreases by 2e and mass decreases by 4 amu. For example, if a parent nuclei X disintegrates to form daughter nuclei Y, the general equation for alpha decay can be represented as from daughter nuclei Y. the general relation for alpha decay can be represented as where Q is the energy released, and it is shared between alpha particle and the daughter nucleus. Next paragraph में लिखो, if we assume that the parent nuclei disintegrates at rest, then initial momentum is 0. And the vector sum of momentum of Y and alpha particle should also be 0. Using conservation of linear momentum.
So Vy की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर हम masses substitute करें, this kinetic energy of alpha particle m alpha is 4 amu and my is a minus 4. सर एक बार हाँ जी. स्क्रीन ब्रॉडकास्ट कर दो प्लीज. बोर्ड पे ब्लर आता है. 955261. So this is the energy with which alpha particle can come out of the nucleus. And Q वैल्यू अगर मैं पूछूं होगी किसके इक्वल? अगर आपसे Q वैल्यू की वैल्यू पूछूं, Q होगा कितना, एनर्जी कितनी होगी? अगर हम वापस इस रिलेशन पे आए, यहाँ से Q वैल्यू निकालनी आती है. हाँ जी सर, निकल जाएगी. कैसे? सर उसको उधर जाके माइनस में ले. यहाँ से किसको माइनस करूं? सर मास बोलो, पूरा फॉर्मूला बताओ ना. Basically, Q is the energy released due to difference in masses. हमेशा तभी एनर्जी रिलीज होगी अगर x का मास y और अल्फा से मिला के ज्यादा है. डेल्टा mc स्क्वायर. कि x का मास अगर y और अल्फा से मिला के ज्यादा होगा तो डिफरेंस इन मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. So you can write, इसके आगे लिख लो. Explanation for alpha decay. Explanation for alpha decay. Explanation for alpha decay. So you can write alpha decay. Alpha decay generally takes place in very heavy nuclei. Alpha decay generally takes place inside very heavy nuclei. And alpha particle when inside the nucleus has two components of potential energy. Alpha particle when inside the nucleus has two components of potential energy. The potential energy due to So last time repeat करना alpha particle.
Then inside the nucleus has two components of potential energy. The potential energy due to electrostatic repulsive force between nuclei. Potential energy due to electrostatic repulsive force between similarly charged particles. Electrostatic potential energy due to similarly charged particles, and the negative potential energy due to strong attractive nuclear force. Alpha particle possess energy of the order of 4 to 8 MeV. Alpha particle possess energy of the order of 4 to 8 MeV. But the minimum energy required to come out of the nucleus is of the order of 25 MeV, at least 25 MeV. This cannot be explained using any classical theory. Quantum mechanically, it was explained by tunnel effect. Whose simplified explanation is simplified because पूरा सही नहीं लिखा रहा मैं, तो जो आपको समझ में आ सकता है उस तरह से लिखा रहा हूँ. Simplified explanation is, first is alpha particle may exist. As an entity within a heavy nucleus. मतलब already group बना हुआ है particles का, 4 particles का. Alpha particle may exist. May because quantum mechanically कभी भी must नहीं होता. All theories are probability based. Alpha particle may exist as an entity within a heavy nucleus. Second is, this group is in constant motion. Group मतलब जो alpha particles में बना है group of nucleons है. This group is in constant motion. Inside the nucleus. And is moving with the speed of the order of
and is moving with a speed of the order of 10 raised to the 7 meter per second. Third is Sir, एक बार repeat कर दो speed of order of 10 raised to the 7 meter per second. Third is there is small but definite likelihood. There is a small but definite likelihood that the alpha particle may pass through this potential barrier without having the minimum required energy to come out of the nucleus. Without having minimum required energy to come out of the nucleus. हमने collisions कितनी ली थी that on an average how many times can it collide with the nuclear boundaries? कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने 1-2 दिन पहले 10 raised to power 21 per second. 10 raised to power 21 per second. अगर 10 raised to power 21 collisions per second है, there is a small probability. मतलब अगर आप per day की बात करो तो it's colliding number of times. दिन में 86,400 seconds होते हैं. So we can say that it's colliding with the nuclear walls and trying to come out of the nucleus per day. It's 8.64 into 10 raised to power 25 times per second. It's trying. When scientists say there is a small probability, small but definite, तो वो स्मॉल प्रोबेबिलिटी लाइक क्या हो सकती है, कितना टाइम में न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल बाहर आ सकता है. साइंटिस्ट ये स्मॉल किसको बोलते हैं? देयर इज अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी दैट इफ इट ट्राइज इट कम्स आउट, बिकॉज दैट विल शो द डिफरेंस कि फिजिक्स में और डेली लाइफ में क्या फर्क है. When we say that there is a small probability, there are experimental verification that even if it collides 10 raised to power 21 times per second, some of the alpha particle may take 10 years to come out of the nucleus. So फिर भी 10 साल लग जाएंगे, फिर हो सकता है वो बाहर आ जाए, हो सकता है ना ही आए, but हो सकता है पहले दिन में ही आ जाए. So because they talk in terms of probability, so we say it may take 10 years to come out of the nucleus. So अगर वो इतनी बारी collide कर रहा है फिर भी 10 साल लग रहे हैं, आपका मास बहुत बड़ा है, आपका साइज बहुत बड़ा है, अगर आप बॉल के दूसरी तरफ जाना चाहते हो तो आपको तो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, मिलियंस मिनट ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे इफ यू कोलाइड say even 1,000 times per second with a wall. But there is a probability that you can move across the wall without making a hole in it because you also have a dual character. So you can read इसके आगे लिख लो, इसको नोट में लिख लेना because it's not required in any stage for school exams. So इसको नोट में लिख लो. The frequency with which, सर एक बार repeat कर दो please. तो मैंने बोला ही से the frequency with which, the frequency with which alpha particle knocks at the nuclear boundary. The frequency with which alpha particle knocks at the nuclear boundary is 10 raised to power 21 per second. And still, alpha particle may take up to 10 years to escape from the nucleus. This happens because in quantum mechanics, moving alpha particle is regarded as a wave.
moving alpha particle is regarded as a wave. Thus, there is always a probability of alpha particle coming out of the nucleus. The optical analog of this effect is optical analog मतलब ऑप्टिकल एनालॉग हम किसको बोलेंगे? ऑप्टिकल एनालॉग. ऑप्टिकल मींस समथिंग टू डू विद लाइट. तो ऑप्टिकल एनालॉग मींस बिकॉज लाइट का भी डुअल कैरेक्टर होता है. So you can read the optical analog is a light wave undergoing reflection from a perfect mirror. लाइट वेव परफेक्ट मिरर है तो उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी या नहीं होगी? अगर परफेक्ट मिरर ले रहे हैं हम फिजिक्स में, it never reflects from the surface. It penetrates the surface and gets reflected from some inner layer. And if the mirror is sufficiently thin, it may pass through the mirror without getting reflected. So you can write optical analog for this is light wave undergoing reflection from a perfect mirror, penetrates it with exponentially decreasing amplitude, before reversing its direction. That is the incident light wave. Penetrates the surface of a perfectly reflecting mirror for a short distance and may pass through it. So last line. Can you repeat the last line? Perfectly reflecting mirror. कहाँ तक लिखा आपने? Reaches the surface of perfectly reflecting mirror. Penetrates the reflecting surface for a short distance and may pass through it. If the surface is sufficiently thin. Next, look at beta decay. Beta decay. Beta decay हमेशा होती है whenever number of neutrons are very large as compared to number of protons. कि अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, then we say that it undergoes a beta decay because that results in whenever neutron proton ratio is very much greater than 1. It affects the stability of the nuclei. So to make it more stable, we say beta decay takes place, the number of neutron will decrease by 1 and proton will increase by 1. So generally हम जो beta decay का relation पहले लिखते थे, we normally write it in this form initially when beta decay was discovered.
We see that it results in proton plus electron plus energy. Okay, neutron inside the nucleus, it changes into proton, electron, and energy. Proton remains inside the nucleus, this electron or beta particle gets emitted out. इसमें दो प्रॉब्लम्स थी. एक तो पहले डिस्कस हमने की थी कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है. अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हमें देख के पता चल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड इन इट. सेकेंड प्रॉब्लम इसमें क्या थी? अगर न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, तो इट शुड एमिट विद अ कांस्टेंट एनर्जी. इसके पास एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए थी इस बीटा पार्टिकल के पास, बिकॉज सारी एनर्जी इसे मिल रही है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रह गए. So we say if this phenomena takes place, actually, if it happens, the beta particles should have almost constant energy when they come out of the nucleus. But it was experimentally found that beta particles have variable energy. उनकी energy constant नहीं होती. It varies from certain minimum to maximum value. Vary करती रहती है. वो constant energy से emit नहीं हो रहा. दूसरा angular momentum conserve नहीं है. Angular momentum conserve नहीं है because neutron का angular momentum क्या होता है? न्यूट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? प्रोटॉन का प्लस माइनस वन. सबका प्लस माइनस हाफ होता है. यूनिट क्या होते हैं? h/2. ये तो आपने यूनिट h/2 पाई होंगे. no सब मल्टीप्लाई करते हैं h/2. h/पाई से 2 पाई से नहीं. प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ. सो तीनों का एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेम होता है एक्सपेरिमेंटली. सो इट वाज फाउंड कि बैलेंस नहीं हो सकता किसी भी वे में, कि किसी भी वे में आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का एंगुलर मोमेंटम बैलेंस नहीं कर पाओगे. सो और दूसरा जो Q वैल्यू है, इसके हिसाब से बीटा पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए थी. तो इन दोनों लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए द साइंटिस्ट फाउंड दैट बीटा पार्टिकल्स आर नॉट emitted alone. They are emitted along with another particle which is called antineutrino. इससे हमारी दोनों प्रॉब्लम्स जो बीटा डीके के इनिशियल कंसेप्ट से आ रही थी वो रिमूव होगी, बिकॉज इसकी स्पिन भी प्लस माइनस हाफ ही होती है एंड इट्स ऑलमोस्ट चार्जलेस मासलेस पार्टिकल. मास इसका नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, चार्ज इस पे होता नहीं है. सो इससे दोनों प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज अगर इसकी स्पिन भी प्लस माइनस हाफ है तो एंगुलर मोमेंटम कैन बी बैलेंस नाउ. अब ये बैलेंस हो सकता है. इन सेकेंड जो एनर्जी का इशू था कि सारी एनर्जी बीटा पार्टिकल को मिल रही है तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए. नाउ द एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स. इट वाज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो दो पार्टिकल एमिट हो रहे हैं और जो एनर्जी है ये दोनों शेयर कर रहे हैं. तो अगर बीटा पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो एंटी न्यूट्रिनो की कम हो जाएगी और एंटी न्यूट्रिनो की ज्यादा होगी तो बीटा पार्टिकल की कम हो जाएगी. बट टोटल एनर्जी जिससे दोनों एमिट हो रहे थे वो कांस्टेंट है. सो अगर एक की एनर्जी बढ़ रही है, एक ज्यादा एनर्जी से एमिट हो रहा है तो दूसरा करस्पॉन्डिंगली लो एनर्जी से एमिट होगा, बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. तो उससे दोनों प्रॉब्लम्स हमारी रिजॉल्व हो जाती हैं. बट याद रखना है कि बीटा पार्टिकल होगा तभी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इसका नंबर एक कम हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल में चेंज हुआ तो न्यूट्रॉन एक कम हो गया और प्रोटॉन एक बढ़ गया. So that ratio improves and it increases the stability of the nucleus also. समझ में आए? बीटा पार्टिकल, इसमें कुछ पूछने वाला तो पूछो, नहीं तो लिखाता हूँ मैं इसको. So you can write beta decay. Beta decay generally takes place. Beta decay generally takes place. Generally मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता. इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट. ऐसे हम नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, डेफिनेट हम कुछ नहीं कह सकते. हर चीज के बारे में देयर आर थ्योरीज एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट्स. बीटा डिके जनरली टेक्स प्लेस व्हेन number of neutrons inside the nucleus, the number of neutrons inside the nucleus are very much greater than number of neutrons inside the nucleus are very much greater than
Number of protons inside it. Number of neutrons inside the nucleus are very much greater than number of protons inside it. Or neutron to proton ratio for nucleus, or neutron to proton ratio for the nucleus is very much greater than 1. Neutron to proton ratio for the nucleus is very much greater than 1. With the emission of beta particles, the number of neutrons will decrease by 1 and number of protons will increase by 1. Therefore, neutron to proton ratio improves. And stability increases. सर एक बार रिपीट कर दो. Decreases by 1 and number of protons increases by 1 के वाक्य बोले. Increases by 1, thus neutron to proton ratio improves and stability increases. Since beta decays, essentially a spontaneous conversion. Since beta decays, essentially a spontaneous conversion of neutron into proton and electron. With proton remaining inside the nucleus and electron or beta particle emitted. With proton remaining inside the nucleus and electron or beta particle emitted. With general relation as, वो सबसे ऊपर वाला relation लिख लो, neutron changes to proton plus electron plus energy. सबसे ऊपर वाला relation लिख लो, neutron is equal to proton plus electron plus energy. सर लास्ट लाइन क्या बोली आपने? Neutron changes to proton plus electron plus energy. वो जो ऊपर वाला रिलेशन ही लिखना है आपको, बाय इनवर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है. But this concept of beta particle emission, violates the conservation principle as all three conservation laws linear momentum, angular momentum, and energy are violated. सर एक बार रिपीट कर दो. All three conservation. Linear momentum, angular momentum, and energy are violated. Next paragraph में लिखो. The beta particles are emitted with energy which varies from 0 to certain maximum value. But Varies from 0 to certain maximum value, but if only beta particles are emitted from the nuclei,
then they should be emitted with a constant energy. Moreover, momentum and angular momentum are not conserved. Initially, बात क्या बोला था मोर क्या लिखा आपने? ओवर both momentum and pressure both. Angular momentum are not conserved. आपको साउंड क्लियर नहीं आ रही कि स्लो लिखते हो? Next, it was initially assumed by scientists that पहले एक्सप्लेनेशन क्या दी होगी साइंटिस्ट ने कि एनर्जी वेरिएबल थी, तो उसका कुछ रीजन आउट देने की कोशिश की होगी ना, जब तक एंटी न्यूट्रिनो नहीं दिया साथ में। तो पहले साइंटिस्ट क्या एज्यूम करते थे कि बीटा पार्टिकल्स वेरिएबल एनर्जी से क्यों आ रहा है? नहीं पढ़ा आपने, सोच तो सकते हो ना क्या एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने देखा बीटा पार्टिकल की एनर्जी वेरिएबल है, तो अब क्या रीजन आउट करोगे इसका कि क्यों बीटा पार्टिकल वेरिएबल एनर्जी से आ रहा है? सेट की होनी तो मैक्सिमम ही चाहिए थी, कि उन्होंने कहा 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम इज अराउंड 1.17 MeV ऑफ एनर्जी। होनी तो मैक्सिमम ही चाहिए थी, बट एक लिमिट से ज्यादा नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये एनर्जी कहीं पे बीटा पार्टिकल इज लूजिंग एनर्जी, कि अगर वो एनर्जी लूज नहीं करता तो वो मैक्सिमम एनर्जी से आता है, बट अगर वो लूज कर देता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा दिस मिसिंग एनर्जी मे बी, अगेन मे बी, it may be due to that as the beta particle comes out of the nucleus, it may collide with the surrounding electrons. Surrounding electrons को हम क्या बोलते हैं? Atomic electrons, जो न्यूक्लियस के बाहर है ऑलरेडी। जैसे it may encounter some collisions and in that collision energy gets lost, तो इसलिए उसके पास वेरिएबल एनर्जी है। बट वो हाइपोथेसिस था अगेन, क्योंकि कोई इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं थी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जब एंटी न्यूट्रिनो मिल गया। So initially scientists assumed that the variable energy of beta particles may be due to variable energy of beta particles may be due to the collision of beta particles with atomic electrons. वैसे इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता था, कंफ्यूजन हो इसलिए एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स लिखा, बिकॉज बीटा पार्टिकल खुद भी इलेक्ट्रॉन है, तो दो बीटा पार्टिकल्स की कोलिजन की बात नहीं की थी। इट्स कोलिजन ऑफ बीटा पार्टिकल विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स may collide with atomic electrons surrounding the nucleus. अच्छा, ये कैसे गलत प्रूव किया होगा ये हाइपोथेसिस कि इसकी कोलिजन हो रही थी कि नहीं हो रही थी? मतलब गलत करने का रीजन क्या है कि व्हाई दे रिजेक्टेड दिस कंसेप्ट? अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है एंड यू वांट टू टेस्ट वेदर द बीटा पार्टिकल्स आर एक्चुअली कोलाइडिंग एंड लूजिंग एनर्जी विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स और नॉट, तो कैसे कर सकते हो? कोलिजन्स में जो एनर्जी लूज होती है वो कहाँ जाती है? Whenever two bodies collide and some energy is lost, मतलब it's not total energy which is lost, it's the kinetic energy which is lost. तो वो kinetic energy जो हमने lose की वो कहाँ गई? +1 +2 की सारी फिजिक्स पढ़ ली है तो बता सकते हो वो एनर्जी कहाँ जाती है जो कोलिजन्स में लूज करते हैं हम? हीट में।
तो अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअल में एटॉमिक कोलिजन्स हुई कि नहीं हुई बीटा पार्टिकल की, you put a radioactive sample which is emitting beta particles inside a calorimeter और उसको पढ़ा रहने दो। अगर collisions हो रही हैं तो calorimeter का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, अगर नहीं बढ़ा मतलब collisions नहीं हो रही, because energy is always lost in the form of heat. So you can write this hypothesis was rejected because the scientists place beta emitting radioactive material inside the calorimeter. As the temperature of calorimeter never changed, the hypothesis was rejected. The hypothesis was rejected. Next paragraph में लिखो, the spin of all three particles, neutron, proton and beta particle is plus minus half. Therefore, angular momentum is not conserved. Therefore, angular momentum is not conserved. अब जो एंटी न्यूट्रिनो ऐड किया वो कौन से साइंटिस्ट का काम था? केमिस्ट्री में उसका नाम सुना होगा आपने. The scientist who gave correct explanation of beta decay एंटी न्यूट्रिनो के साथ. एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन से साइंटिस्ट पढ़े थे केमिस्ट्री में? So Pauli, जिसने Pauli's exclusion principle दिया था, he also gave the concept of beta decay. So you can write again next paragraph में लिखना, the correct explanation for beta decay. The correct explanation for beta decay was given by Pauli, he assumed that another uncharged particle of small or zero rest mass and spin half is emitted along with the beta particle. And the general relation can be written as for next वाला लिख लो. Neutron changes to proton plus beta particle plus antineutrino plus Q. पॉली बेसिकली स्पिन के साथ ही डील करता था, उसकी सारी रिसर्च स्पिन बेस्ड थी, तो दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू डिटेक्ट अ पार्टिकल. बिकॉज़ उसका अगर आप पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखोगे, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमेना टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम. जो उसने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था क्या? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल arrangement of electrons in orbits. यही था ना? पॉलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था. पॉलीज ने कुछ बोला था,
electronic state? configuration of different elements can not be seen. Electronic configuration of, आपने किसी को सिंपल वर्ड्स में बताना है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, क्या बोलोगे, क्या कहा था पॉली? No two electrons have same spin, same set of all quantum numbers. सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अब ऐसा उसने क्यों कहा? उसके पीछे कुछ रीजन था होगा ना। उसने तीन तो सेम कर दिया अगर हमने एक गिवन ऑर्बिटल लिया। उसने कहा इनकी स्पिन हमेशा ऑपोजिट होनी चाहिए, बिकॉज स्पिन ऑपोजिट नहीं होगी तो क्या होगा? बिकॉज उसने कहा कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन तो डिफरेंट होनी चाहिए, तो स्पिन सेम होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? क्यों स्पिन डिफरेंट होनी चाहिए दोनों की? पढ़ा है ना ये केमिस्ट्री में, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबने? सर कुछ मैग्नेटिक फील्ड को लेके था कि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसने कहा था स्पिन अलग होती है। अच्छा, स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन पॉइंट पार्टिकल है, उसकी स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? कुछ भी, कहीं से भी एक्सप्लेनेशन? सर मैग्नेटिक मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, उसने इसलिए कहा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों की अलग क्यों चाहिए? और जो आपने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ी है वो तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कब पढ़ी आपने? रट्टा मारा हुआ, मतलब इसका भी पढ़ा नहीं है आपने, रटा है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। रीजन तो किसी को नहीं पता चारों क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं होने चाहिए। ये तो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसकी पता होना चाहिए डिटेल्स। एनीवेज लिखो आगे, मैं नहीं बता रहा आपको, अपने आप ढूंढना कहीं से एक्सप्लेनेशन। सेकंड राइट, कहाँ तक लिखा था? लास्ट लाइन क्या लिखी है? कहाँ तक लिखा हमने? जीरो रेस्ट मास एंड स्पिन हाफ इज emitted along with electron, यहीं तक लिखा है? Yes, sir. So इसके आगे लिख लो, द एनर्जी, linear momentum and angular momentum. The energy, linear momentum and angular momentum will be conserved and Enrico Fermi, इसका भी नाम सुना होगा, फर्मी का भी, and Fermi found this particle to be antineutrino. This will conserve angular momentum. This will conserve angular momentum. In the decay process. Also, the total energy Q is shared between. Also, the total energy Q is shared between beta particle and antineutrino. Beta particle and antineutrino. If beta particle carries large energy, then antineutrino will have correspondingly small energy and vice versa. Antineutrino will have correspondingly small energy and vice versa. Antineutrino will have correspondingly small energy and vice versa. इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो बीटा डिके में, अगर बीटा डिके में कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्लियर है? बीटा डिके सबको?
क्लियर है तो मेरे को बताओ, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो दो की दी, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी, और मैंने दोनों बार ही बीच में लिखा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन डजंट होल्ड। वो क्यों? आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वो कैसे पता चला वो कंजर्व नहीं है? क्योंकि आपको समझ में आ गया और आपने मेरे से पूछा नहीं, तो आप मेरे को बताओ, जब मैंने लिखा लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, तो आपको सबको क्लियर था कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है? अगर क्लियर था तो क्या रीजन है, और नहीं क्लियर था तो चुपचाप क्यों बैठे हो? Why linear momentum is not conserved in this beta decay? और एंटी न्यूट्रिनो एमिट होने से वो कंजर्व कैसे हो गया? बिकॉज मैंने पहले ये भी लिखा कि 3 कंजर्वेशन लॉस ओबे नहीं हो रहे, और फिर लिखा कि बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो तीनों ओबे हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने दोनों बार ही दो की दी है, तो व्हाई यू नेवर आस्क्ड कि लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व नहीं है इसमें? जाग रहे हो कि सो रहे हो सारे? कौन बताएगा जल्दी से एक्सप्लेनेशन? मैं क्लास नहीं आज खत्म करूंगा जब तक मेरे को इसके एक्सप्लेनेशन नहीं देते। Why linear momentum is not conserved? कैसे पता चला साइंटिस्ट को? क्या रीजन हो सकता है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है ये बताओ चलो। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन स्टेट्स? Linear momentum conservation states that अब बोल नहीं रही, मेरे को सुन नहीं रहा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं आप बता रहे क्या होता है। हाँ जी, कोई तो बोलो। मैं बैठ जाता हूँ आराम से, मेरे को इसके आगे भी कराना है, पर कराऊंगा तब जब इनके आंसर दोगे। Why linear momentum is not conserved? Linear momentum conservation क्या होता है? ये तो +1 में पढ़ के आए हो ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। So it states that After collision, initial momentum is इसमें कोलिजन हो रही है कोई? अब कोलिजन कहाँ से ले आए बीच में? यहाँ तो कोलिजन हो ही नहीं थी। वो तो आपने कोलिजन में पढ़ा था लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशन में, तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो पढ़ा था वो पूछ रहा हूँ। वो तो आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ी कोलिजन में। मैं पूछ रहा हूँ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? न्यूटन के लॉ से हमने कैसे एक्सप्लेन किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। कोलिजन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। इसमें जब मैंने लिखा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इज नॉट देयर, तो उसका क्या रीजन है? ये देखो, भारत का भविष्य। अफगानिस्तान बना दोगे तुम इंडिया को भी, ऐसे ही पढ़ोगे साइंस को। अगर मैं किसी पार्टिकल में से बीटा मिशन लेता हूं, से मेरे पास एक न्यूक्लियस है,
इसमें से बीटा पार्टिकल निकला, न्यूक्लियस को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए अगर बीटा पार्टिकल टुवर्ड्स राइट जा रहा था? लेफ्ट। अगर मेरे को लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है तो इसको सेम मोमेंटम से इधर आना पड़ेगा। यही लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है ना, रिकॉइल ऑफ अ गन, जैसे आपने पढ़ा था, बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी। सो अगर बीटा पार्टिकल एक डायरेक्शन में जाएगा तो ये ऑपोजिट, बट इट वाज फाउंड कि ये जो न्यूक्लियस है ये एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट नहीं जा रहा था, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं था सिस्टम में। तो दे फाउंड, जब उन्होंने बीटा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो भी ले लिया साथ में, से एंटी न्यूट्रिनो इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इनका रिजल्टेंट मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो जाएगा? वेक्टरसम अलोंग द डायगोनल, ये अलोंग द डायगोनल हो जाएगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया, बीटा पार्टिकल इधर, तो रिजल्टेंट मोमेंटम इज अ वेक्टरसम, तो इसके ऑपोजिट जा रहा था। तो इन दोनों के लीनियर मोमेंटम का जो वेक्टर सम था उसकी जो डायरेक्शन थी उसके ऑपोजिट बीटा न्यूक्लियस मूव कर रहा था। सो दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन कंजर्विंग द लीनियर मोमेंटम, बिकॉज फिजिक्स में देयर इज स्टिल नो फिनोमेना आज की डेट तक भी से, मतलब यू कैन से 21 अगस्त 2021, एक भी हमारे पास एग्जांपल नहीं है फिजिक्स में जहाँ पे लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो। इट्स ऑलवेज 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 कंजर्व्ड, ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल माने जाते हैं। So you can write, next लिखो गामा डिके, गामा डिके। सर आपने स्पिन वाला क्वेश्चन कौन सा बोला था ढूंढने को, एक बार रिपीट कर दो। कौन सा क्वेश्चन? स्पिन मैंने वाला आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रीजन क्या है? उसने एक स्टेटमेंट दी, उसका कुछ रीजन तो होगा ना, उसका रीजन चाहिए मेरे को, क्यों मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। रटने के लिए वो बड़ा अच्छा है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं हो सकते? पॉलीज के कहने से मैं क्यों मानूं? मैं साइंस पढ़ता हूँ, मैं क्यों मानूं पॉली की बात जब तक मेरे को समझ नहीं आती? इनफैक्ट मैं किसी भी साइंटिस्ट की बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरे को उसका लॉजिक समझ नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी साइंस पढ़ी जाती है, पॉली ने कुछ कहा से आइंस्टाइन ने कुछ कहा, उसने कहा और आपने मान लिया। देयर मस्ट बी सम रीजन, सम लॉजिक, और साइंटिस्ट हमेशा वो देते हैं कि वो किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, और अगर उनका लॉजिक नहीं होता तो दे कॉल इट हाइपोथेसिस। तो पॉलीज हाइपोथेसिस नहीं है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट रेट गामा डिके, गामा डिके। Gamma decay is the phenomena of emission of energy in the form of gamma particles from a radioactive nuclei that is like an excited atom, like that of an excited atom. An excited nucleus can also emit a photon. Like an excited atom, an excited nuclei can also emit a photon. और सेम जैसे एक्साइटेड एटम को आप वो इसका मार्क लगा के, स्टार लगा के डिनोट कर देते हो, सो इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हो। Gamma decay is not an independent phenomena. Gamma decay is not an independent phenomena. It generally follows alpha or beta decay. It generally follows alpha or beta decay. After alpha or beta decay of the nuclei, after alpha or beta decay of the nuclei is generally in. After alpha or beta decay of the nuclei, the nucleus is generally in the excited state. Nucleus is generally in the excited state. There is nucleons are present.
in higher energy state relative to the ground state. सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट कर दो. कहाँ तक लिखा आपने? कहाँ तक लिखा है? That is nucleus nucleons are present. सर इसके बाद में लिखो. There is nucleon are in excited state and returns to ground state with the emission of gamma ray photon. For example, in beta decay of magnesium nuclei, रेडियोएक्टिव मैग्नीशियम की बात हो रही है. एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीशियम है तो एटॉमिक नंबर रेडियो एक्टिविटी से एटॉमिक नंबर बदलता है या नहीं बदलता? रेडियो एक्टिव नेचर से. बिकॉज लो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर लो एटॉमिक नंबर है तो आपने पढ़ा है ना कार्बन 14, तो कार्बन है तो एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा. मास नंबर चेंज होता है बिकॉज आइसोटोप्स कैन बी रेडियोएक्टिव समटाइम्स. सो मैंने मैग्नीशियम लिया. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया? 12. तो इसका आइसोटोप मैग्नीशियम 27. किसने बीटा डिके की? क्या बना बीटा डिके के बाद? मैग्नीशियम की बीटा डिके होगी तो कौन सा न्यूक्लियस बनेगा? सेम न्यूक्लियस रहेगा या बदल जाएगा? अभी बीटा डिके में क्या पढ़ा था? बीटा डिके होती है तो क्या चेंज होता है? न्यूट्रॉन का नंबर एक. बीटा डिके में न्यूट्रॉन के नंबर में क्या चेंज होता है? प्रोटॉन के नंबर में क्या चेंज होता है? न्यूट्रॉन एक कम हो जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है. तो अगर मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ गया तो उस पर चार्ज 12 की जगह कितना हो जाएगा? 12 प्रोटॉन थे ना, 13 हो गए तो कौन सा एलिमेंट बना? एटॉमिक नंबर 13 किसका होता है? तो फिर इसमें बताने में क्या प्रॉब्लम है? It forms but this is an excited state. ये ground state नहीं है. So this nucleus is an excited state after emission of beta particle. It can return to ground state. It can return to ground state. अब जैसे normal atoms में होता है. It can return to ground state using one emission or two emissions. दोनों process possible है. तो हम ऐसे energy state draw कर देते हैं कि अगर मैं दो states में लूं, गामा पार्टिकल लिमिट होने से चार्ज और मास बदलेगा? गामा पार्टिकल एमिशन से चार्ज और मास में चेंज आएगा? अभी क्या लिखा था? गामा इज फोटोन, गामा रे पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो चार्जलेस मासलेस पार्टिकल एमिट होगा तो ये तो चार्ज और मास थोड़ी बदलेगा, ये तो सेम ही रहेगा. मैंने इसको भी एक्साइटेड ही शो किया.
So we say it returns either directly या दो स्टेप्स में. So वो डायरेक्ट भी आ सकता है और दो स्टेप्स में भी आ सकता है कि पहले थर्ड से सेकंड लेवल में आ गया, सेकंड से फर्स्ट में आ गया, और एनीवेज सो दोनों वेज में पॉसिबल है. इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज relative to ground state. So you can write as gamma particles are. क्या लिखा था? magnesium beta decay of magnesium nuclei. The aluminium nuclei is so formed. The aluminium nuclei is so formed is an excited state. The aluminium nuclei is so formed is an excited state. And the nucleus can return to ground state with the emission of gamma particles. Nucleus can return to ground state with the emission of gamma particles. As gamma particles are chargeless, massless photons. As gamma particles are chargeless, massless photons. Therefore, charge and mass on the nucleus remains unchanged. Therefore, charge and mass of the nucleus remains unchanged. With the emission of gamma particles. With the emission of gamma particles. Next is nuclear fission. Nuclear fission. Nuclear fission क्या होता है? Nuclear fusion क्या होता है? Nuclear fission किसे बोलते हैं? Nuclear fusion किसे बोलते हैं? Fission is phenomena of splitting of heavy nuclei into the smaller nuclei with the release of energy. Spontaneous होता है और it requires external help. Fission is always with external help. कि जैसे यूरेनियम का बड़ा, if uranium is bombarded with the slow moving neutrons, its fission take place. Barium and krypton are formed with a release of around 200 MeV of energy. So जब heavier nuclei split करके smaller nuclei बनाएंगे with the release of energy, that phenomena is referred as nuclear fission. और fusion is the opposite. Smaller nuclei combines to form heavier nuclei with the release of energy. Fusion को हम लेते हैं, it's more powerful as compared to fission. कि normal daily life में अगर हम बात करें तो we call nuclear fission as nuclear reaction या nuclear bomb. और nuclear fusion को क्या बोलते हैं? It's nuclear fission is nuclear weapons जो हम countries की बात करते हैं. Nuclear fusion bomb को क्या बोलते हैं? And like there is a non-proliferation treaty NPT है. There's a ban on testing nuclear weapons. Ban on testing nuclear weapons की किसी भी country ने 10 TNT से बड़ा explosion करना है तो it's not allowed except the 5 permanent members of UN Assembly. कि जो 5 permanent member हैं Security Council के, only they are allowed to carry out nuclear tests. बाकी पूरे world में ban है कि आप nuclear test नहीं कर सकते. Neither fission nor fusion up to a value से 10 TNT से बड़ा. Why this ban and why the country should follow it? और किसी को क्या पता हम इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? This can be carried out secretly.
सर सैटेलाइट्स की वजह से ट्रैक हो जाते हैं। ना, सैटेलाइट से तो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स है इंडिया की, वहां तो हमेशा लोग रहती हैं, तो कैसे पता चलेगा? इंडिया के पास टनल भी है, इंडिया के पास सब कुछ ऑलरेडी है। जहाँ पे इंडिया ने 74 में टेस्ट किया था, पोखरण इज इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट साइट। या अगर कोई कंट्री मान लो से नॉर्थ कोरिया जैसी, जो टेस्ट नहीं करती बट कहती है हाँ मैंने कर लिया, तो दोनों वे है ना, आप दोनों वे में झूठ बोल सकते हो। आप करके मुकर सकते हो कि मैंने नहीं किया, या आप नहीं करके भी कह सकते हो हाँ मैंने कर लिया। तो इसका सर करके नहीं साइंटिस्ट करने में कम्युनिटी क्या क्या बेनिफिट क्या चीज, होता है कोई? सर जैसे किसी कंट्री ने अगर टेस्ट कर लिया, वो ऐसे क्यों बोलेगा कि मैंने टेस्ट नहीं किया? बिकॉज अगर कोई बैन है, क्योंकि इस पे आप बैन चीज कैसे कर सकते हो जिस पर यूएन ने बैन लगाया हुआ है? सर फिर तो टेस्टिंग का कोई फायदा ही नहीं होगा अगर प्रूव ही नहीं हो सकता न्यूक्लियर पावर कंट्री है कोई। तो वो चाहते ही नहीं और न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बने, जो ऑलरेडी हैं वो चाहते हैं बस वही रहे। नहीं सर, कंट्री इसीलिए प्रूव करते हैं ना कि वो न्यूक्लियर पावर्ड हो गई है, मतलब अगर वो यही नहीं करेगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा टेस्टिंग का? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बिकॉज अगर आप टेस्ट करते हो और आप अनाउंस कर देते हो मैंने किया, तो बाकी कंट्रीज आपका जीना आराम कर देंगी, खास करके जिनको हम ये सुपर पावर्स कहते हैं। हाँ जी। आप पे इतने सैंक्शंस लगेंगे कि आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। जैसे इंडिया ने जब 98 में किया रिएक्शन, तो इंडिया पे बैन लगा, उन्होंने इंडिया के लोगों के वीजा तक कैंसिल कर दिए जिन्होंने यूएस जाना था, कि कोई इंडिया से यूएस नहीं आ सकता, ट्रैवल बैन लग गया था। यूएस की कोई कंट्री इंडिया में बिजनेस नहीं करेगी, इंडियन कंपनीज यूएस में सामान नहीं बेच सकती, हर तरह के बैन लगते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगती हैं। इंडिया के वर्ल्ड बैंक से लोन कैंसिल हो गए जो इंडिया को वर्ल्ड बैंक से मिलने थे। वर्ल्ड बैंक जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा था वो बंद हो गए। इंडिया कौन सा ऐसी कंट्री है कि इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद से सब कुछ कर सकती है? इंडिया को तो फंडिंग चाहिए होती है, इनका तो बजट ही हर साल लॉस वाला होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप टेस्ट करते हो, इंडिया में आपने टेस्ट किया, अब उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है बिकॉज 10 TNT तक टेस्ट अलाउड है। TNT मींस, यार आप पूछते क्यों नहीं, कोई चीज नहीं पता होती। TNT क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं, ट्राई नाइट्रोटाउलिन? हाँ नो, आप सारे। सो 10 TNT तक अलाउड है, मतलब TNT इज अ कन्वेंशनल वेपन जो आर्मी यूज करती है, एक्सप्लोसिव यूज करती है, बिकॉज आर्मी दो तरह के एक्सप्लोसिव यूज करती है। वन इज TNT, दूसरा क्या होता है, दूसरे का शॉर्ट नाम क्या दिया हुआ है आर्मी ने? RDX, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। So RDX या ट्राइनाइट्रोटाउलिन, these are conventional weapons which are used। उसके इक्विवेलेंट मतलब 10 TNT बॉम्ब के इक्विवेलेंट आप न्यूक्लियर फ्यूजन टेस्ट कर सकते हो। अब टेस्ट भी किया, ज्यादा किया कम किया, ऑल दैट इज डिटेक्टेड बाय लैब इन फ्रांस। फ्रांस में एक लैब है जो नोट करती है कि आपने कितना बड़ा एक्सप्लोजन किया, एंड दे डोंट नीड टू विजिट अ पर्टिकुलर कंट्री टू टेस्ट इट्स वेपन। वो वहां बैठ के ही उसको जज कर लेते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड, कि वो बताते हैं आपने कौन सा एक्सप्लोजन किया है। एंड वो कैसे मेजर करेंगे? बिकॉज न्यूक्लियर explosions are always carried inside earth, ओपन में नहीं होते हैं, हमेशा अर्थ के अंदर एक्सप्लोजन किया जाता है, वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। रीजन बीइंग दे डोंट वांट द रेडिएशन डैमेज आउटसाइड। बाहर नहीं ओपन में कर सकते, रेडिएशन डैमेज होता है बहुत, तो अर्थ के बहुत नीचे जाके एक्सप्लोजन किया जाता है। Now, these are so powerful weapons that when such an explosion takes place, it creates seismic waves throughout the world। कि अर्थ के नीचे की जो लेयर्स हैं रॉक्स की, वो सारी हिल जाती हैं इस एक्सप्लोजन से। सो जो लैब है दैट मेजर्स द सेस्मोलॉजिकल वाइब्रेशंस इनसाइड द अर्थ, तो वहां से उन्हें पता चल जाता है कि किसी कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है या नहीं किया, बिकॉज दिस आर नॉट नेचुरल फिनोमेना कि ऐसी सेस्मोलॉजिकल वेव्स प्रोड्यूस होना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो वहां से वो डिटेक्ट करते हैं वेव्स के, मतलब रेक्टर स्केल पे जैसे अर्थक्वेक मेजर होता है, उस वे में वो मेजर करके बता देते हैं कि दिस पर्टिकुलर साइज बॉम्ब इज टेस्टेड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री। तो वो उनका काम है मेजर करना, एंड दैट्स हाउ दे डू इट। एक बार ही हो गया, उसके बाद तो जो होगा देखा जाएगा, बट
all the powers of the world consider कि करने ही नहीं देना. इंडिया ने 98 में किया because उससे पहले एनपीटी उससे पहले ही किया. इंडिया ने 98 में कैसे कर लिया फिर? Because India has still इंडिया not को signed. इंडिया ने साइन ही नहीं इंडिया किया उस पर अभी तक. सर उस टाइम ये भी ट्रीटी थी कि 25 इयर्स बाद वो एक्सपायर हो जाएगी वो एनपीटी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इंडिया ने एनपीटी पे साइन ही नहीं किया आज तक. नहीं सर 25 इयर्स बाद कंप्लीटली एक्सपायर हुआ है, तो ये भी कंडीशन थी एक. एक्सपायर का नहीं है, मतलब सिंपल है. इंडिया परमानेंट सीट किस लिए मांग रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में? इंडिया इज ट्राइंग हार्ड. पिछले 12-13 साल से 14 साल से इंडिया बहुत कोशिश में है कि मेरे को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, ड्यू टू 2 रीजंस. इंडिया इज वन ऑफ द, you can say these days, one of the best performing economies, और दूसरी हमारी population. कि every 7th person in the world lives in India, तो they say we deserve a seat in the Security Council. So अगर हम ऐसे देखें कि every 7th citizen in India, और दूसरे वे में देखो तो every 5th product sold in the world is sold in India. तो इंडिया दोनों वे में एक पावर गिनी जा सकती है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और बिकॉज पॉपुलेशन है तो मार्केट साइज भी उतना बड़ा है. इंडिया पे बैन लगाना पॉसिबल भी नहीं है किसी के लिए अब की स्टेज पे, बिकॉज इफ यू सी कि इंडिया पे बैन लगाने का हमें कम और उन्हें ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज इंडिया में सारी मल्टीनेशनल्स जो है वो बाहर बेस्ड है, चाहे वो जर्मनी की कंपनी है चाहे वो अमेरिका की कंपनी है. तो वो बैन लगा के खुद ही फंसेंगे. मतलब इंडिया को तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया की तो अपनी कंपनीज भी हैं. तो इसलिए मतलब इंडिया बहुत आराम से बैठा है कि मेरे को मेंबरशिप भी परमानेंट चाहिए, और इंडिया कहता है कि मेरे को जब टेस्ट करना होगा मैं करूंगा भाई. दैट वाज अनाउंस्ड वे बैक इन 2011. मनमोहन सिंह ने जाके यूएन जनरल असेंबली में अनाउंस कर दिया था कि इंडिया ने जब टेस्ट करना होगा हम करेंगे, हम नहीं मानते आपके ट्रीटीज को. और उसका रीजन यही है बिकॉज द पॉलिटिशियंस नो द पावर इंडिया के पास आज की डेट में जो है. एनीवेज, अब न्यूक्लियर फिजन में हम लेते हैं कि फ्यूजन को पावरफुल मानते हैं, जबकि फिजन में हम जो एनर्जी रिलीज लेते हैं दैट इज 200 MeV इन वन फिजन. मेरे फ्यूजन में पर फिजन एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो सिर्फ 24 MeV होती है, बट एफिशिएंसी देखनी होती है. मतलब परसेंटेज ऑफ मास व्हिच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन फ्यूजन इज 7 times more than the percentage of mass which gets converted into energy in fission. Although दोनों की efficiency it's very small, even not even 0.1%. तो 0.1% मास भी एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा दोनों रिएक्शंस में. बट क्योंकि फ्यूजन में फिजन से 7 times ज्यादा मास एनर्जी में चेंज हो रहा है परसेंटेज ऑफ मास, that's why we say that fusion is a more energy efficient and a more powerful reaction. But to carry out nuclear fusion, because आपको similarly charged particles को join करना है, कि फ्यूजन मतलब 2 हीलियम न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर दिया, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर दिया, बिकॉज आपने 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को फ्यूज करना है, यू रिक्वायर लार्ज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय फिजन. तो पहले न्यूक्लियर फिजन करेंगे, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उसमें फ्यूजन होगी. So that's why fusion is referred as thermonuclear reaction, because it's carried out at a temperature of the order of 1 million Kelvin. कि आपको 1 million Kelvin का टेम्परेचर चाहिए टू फ्यूज द न्यूक्लियाई. तो पहले फिजन करेंगे, फिजन से जो हाई टेम्परेचर रिक्वायर होगा उसमें फ्यूजन होगी. तो थर्मोन्यूक्लियर बिकॉज इट्स कैरिड आउट एट अ हाई टेम्परेचर ओनली. सो 74 में इंडिया ने फिजन किया था, 98 में फ्यूजन किया था. because 74 द पोखरण वाज अ फ्यूजन फिजन बॉम्ब. और इंडिया की वही टेस्ट सेट चलती है. इंडिया जो भी टेस्ट ऐसे करता है वो पोखरण नहीं करेगा. सो यू कैन राइट न्यूक्लियर फिजन. It is the phenomena of nuclear fission. It is the phenomena of splitting of heavy nucleus into lighter nucleus with the release of energy. Heavier nucleus into lighter nucleus with the release of energy. In the process of fission, a certain mass disappears that is the mass of products is less than
the mass of reactant components, the mass of products is less than the mass of reactant components, and this difference in mass is getting converted into energy. This difference in mass is getting converted into energy according to Einstein's mass energy equivalence. According to Einstein's mass energy equivalence. If delta M is the mass defect, energy released is E is equal to delta mc square. The first nuclear fission was carried out by कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले फिशन की थी? बॉम्ब तो अमेरिका ने बनाया था, फर्स्ट न्यूक्लियर फिशन was done by Hahn and Strassman. Hahn and Strassman 1938 में की थी शायद. Hahn and Strassman did the nuclear fission of uranium-235 with slow-moving neutrons. स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का कोई नाम भी होता है? थर्मल न्यूट्रॉन्स विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स. They bombarded uranium-235. With thermal neutrons, resulting in splitting of the nuclei, resulting in splitting of the nucleus into barium and krypton with a release of energy, with a release of around 200 MeV of energy. सर हाँ जी. सर लास्ट लाइन रिपीट कर दो. बी बम्बार्डेड के बाद With neutrons results in splitting of nucleus into barium and krypton with a release of 200 MeV of energy. Because ये तीन न्यूट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो तीन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे दिस कैन हेल्प इन फर्दर फिजन. सो वो चेन रिएक्शन स्टार्ट करने में नहीं तीन न्यूट्रॉन्स का काम होता है कि बेरियम और क्रिप्टॉन तो बने, साथ में तीन एडिशनल न्यूट्रॉन निकला है कि जैसे हमारे पास यूरेनियम न्यूक्लियाई है, इसको हमने बम्बार्ड किया, बेरियम एंड क्रिप्टॉन तो गए और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स निकले. जो ये तीन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे they can carry out further fission of other uranium nuclei. So वो chain reaction start हो जाएगा. chain reaction start हो जाएगा and मतलब अगर हम लें कि तीन में से दो ने further fission कर दी, फिर 6 न्यूट्रॉन्स निकला है, 6 न्यूट्रॉन्स ने और fission की, so the chain reaction starts between the nucleus. The only problem is nuclear fuel. Nuclear fuel होता है pure uranium जिसमें impurities ना हो. अगर आपको न्यूक्लियर वेपन बनाना है, मतलब रिएक्शन लिखने के लिए ठीक है, देयर इज अ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस. अगर आपके पास प्योर यूरेनियम फ्यूल नहीं है, जो भी फ्यूल आप यूज करते हो, सम कंट्रीज यूजेस थोरियम आल्सो, प्लूटोनियम आल्सो, तो आपके पास जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है वो प्योर होना चाहिए. अब प्योर यूरेनियम अगर नहीं होगा तो ये जो तीन न्यूट्रॉन्स निकले, these gets absorbed by the impurities present in the uranium sample without carrying out further fission. So इसलिए इनको ये एब्जॉर्ब ना कर ले जो फर्दर है, तो ये अगर इनको एब्जॉर्ब कर ले इन तीनों को तो वही रिएक्शन रुक जाएगा. सो यू वांट कि ये जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं फर्दर चेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, इनसे और यूरेनियम न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट करें. So that's why you need pure uranium fuel.
तो जो भी कंट्री न्यूक्लियर पावर्स हैं, दे हैव अ सोर्स, उनके पास मेथड है, टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर फ्यूल की। यहाँ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनको मतलब जो रूल्स फॉलो नहीं करती वर्ल्ड के, उनके पास न्यूक्लियर फ्यूल कहीं से भी आ जाता है। दे आइदर बाय फ्रॉम द कंट्रीज जो बेचने को तैयार हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान है या नॉर्थ कोरिया है, तो इनको चाइना सोर्स कर देता है किसी ना किसी वे में न्यूक्लियर फ्यूल। अदरवाइज इट्स नॉट अवेलेबल कि आप ऐसे खरीद सको जाके किसी कंट्री से। एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं फिर जो कंट्रीज को खुद डेवलप करनी पड़ती हैं। बस पाकिस्तान के पास देयर इज वन मैन हु इज अ वेरी गुड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अगर आपने उसका नाम सुना है, कलाम, सुना नाम उसका? पाकिस्तान का एक ही नोबेल प्राइज विनर है, कलाम, अब्दुल कलाम, उनका एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन है, वेरी गुड फिजिसिस्ट एंड अ वेरी गुड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज विनर है 1979 का। एंड पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसी ने सेटअप किया सारा, अकेले इंसान ने। इट्स नॉट लाइक अ टीम वर्क इंडिया में, उसको खुद को इतनी नॉलेज है कि उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। सो एक तो इम्प्योरिटीज, और प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो हमें प्योर यूरेनियम फ्यूल चाहिए, और क्या चाहिए होगा? यू नीड द टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल इट ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट वांट अ टेस्ट टू गो अनकंट्रोल्ड। बिकॉज अगर आपको मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है, तो you want this nuclear reaction to be carried out in a controlled manner so that you can stop when the need be. Uncontrolled नहीं चाहिए, because it can generate so much energy कि आपका सारा reactor melt कर जाएगा उसकी heat से। So we carried out in a very controlled manner. कितने neutron further participate करेंगे fission में, that has to be controlled using technologies, moderators। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, control rod moderators slow down करते हैं, control rod absorb कर लेती हैं। रिएक्टर में मैं कंट्रोल रॉड्स को पुश इन कर दूंगा तो दे एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड द चेन रिएक्शन विल स्टॉप। सो उसको नेक्स्ट टाइम करते हैं। इतना पढ़ के देख लो आज वाला पार्ट, अल्फा बीटा गामा डीके, एंड देन वी विल डू इसके आगे। सर आज शाम को क्लास होगी? हाँ, शाम को क्यों नहीं होगी? ये तो कल वाली क्लास लगी है। वो तो सुबह मेरे को पता है फ्री होते हो, इसलिए मैंने लगा ली थोड़ी सी बड़ी क्लास।